مگر اب مجھے ایک دلی خوشی ہے کہ میں اپنے گھر ملتان میں آ کے الیکشن لڑوں. یہ جگہ وہ ہے جہاں ہماری پہچان ہے, اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ اس حلقے کے لیے وہ کوششیں کریں گے جو پہلے شاید کسی نے نہیں کی. میں آپ کو عرض کروں, میں یہ بڑی بات مطلب ایسے نہیں بات کر رہا کہ میں بڑھ کے مار دوں, ووٹ لینے کی خاطر یہ کہہ دوں وہ کہہ دوں. اگر میری زبان سے ایک بات نکلے گی تو اس کو پورا کرنا میرا پورا فرض ہوگا اور میری پوری کوشش ہوگی, اور انشاءاللہ تعالی اللہ کامیاب کرے گا. جتنے یہ لوگ آئے ہوئے ہیں, ظہیر خان صاحب ہیں ہمارے, یہ 2 MPs ہیں, کینڈیڈیٹس ہیں, باقی پیچھے لوگ کھڑے ہیں. اب میں یہاں پہ جو آؤں آ کے ان کی خاطر کام کروں. ٹھیک ہے, مجھے بھی عزت ملے گی انشاءاللہ, یہ لوگ دلوائیں گے, مگر یہ حلقہ جو ہے نا یہ میرا فوکس ہے. انشاءاللہ تعالی اس حلقے میں وہ ہم کام کریں گے, ایسے کام کریں گے اللہ کی مدد کے ساتھ, جو لوگ ابھی سوچ بھی رہے ہوں گے اور ہمارے کام پہلے ہوں گے. انشاءاللہ تعالی اس حلقے کو ہم ایسا بنائیں گے کہ لوگ یاد سے دیکھیں اس کو, پہلے ملتان کے دوسرے حلقوں سے آ کے یہاں لوگ دیکھیں, اور پھر اور شہروں سے لوگ آ کے دیکھیں اس حلقے کے اندر کیا کام ہوا. یہ بہت بڑی بات, بہت سیریس بات کر رہا ہوں میں, مذاق سے نہیں کر رہا. یہ انشاءاللہ ہماری کوشش ہے, یہ ہمارا ٹارگیٹ ہے. اور سیکھا ایک ہے زندگی میں, ایک کہ اگر آپ نے کہیں پہنچنا ہے تو ٹارگیٹ اونچا رکھنا چاہیے. ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ جی ہم پہلے سے بہتر کریں گے. ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم کہیں جی ہم بہتر کریں گے, پہلے جو بھی لوگوں نے کام کیا ان سے 5%, 10%, کچھ 100% کر دیں گے. ہم ایسے کام کریں گے جو پہلے نہیں ہوئے, پھر میں خوش ہوں گا. آپ کو بھی میں دونوں کو کہہ رہا ہوں, آپ کو کہہ رہا ہوں ظہیر خان, آپ سب کو کہہ رہا ہوں. آپ لوگ یہ پیچھے نہ رہیں کہ یہ ہو سکتا ہے یا یہ نہیں ہو سکتا. یہ میرا کام ہے. انشاءاللہ اللہ مدد دے, اللہ ہمت دے, اور اس حلقے کی شکل تبدیل کر دے. جو بھی اس طرح کے کام میں, گلیوں میں, کوچوں میں, کہیں پہ بھی, ہم اس سے پیچھے نہیں رہیں گے. اور آپ سب کو میں یہ کہتا ہوں, میرے ساتھ جو لوگ آج جوائن کیے, آپ اپنے علاقوں میں جا کے کھل کے دیکھیں, اور جو کام ہے, ایسے کام جو ہونے والے ہیں, ہم انشاءاللہ تعالی سب کرنے کی کوشش کریں گے, اور انشاءاللہ اللہ ہمیں کامیاب کرے گا. یہ جو ہے نا سیاست, اب میں یا اللہ تعالیٰ سے ڈر کے کہتا ہوں, اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑا نوازا ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت, میں قسمت والا انسان ہوں, اللہ تعالیٰ کی دی ہے مجھے, اللہ نے اچھی زندگی دی ہے. مگر یہ ساری زندگی بھی جو ہے نا یہ کسی فائدے میں نہیں ہے اگر میں عوام کے لیے کام نہیں کر سکتا. ان لوگوں کے لیے جو پیچھے رہ گئے ہیں یا جن میں ایسی جگہ رہ رہے ہیں جہاں پہ ان کو اتنا سر سوکھ نہیں ہے, کام نہیں ہو رہے, ہمارا کام ہے آ کے ان لوگوں کی مدد کرنا. اور یہ بھی بتاؤں آپ کو کہ یہ پاکستان, یہ یوتھ کی آبادی زیادہ ہے. جو ینگ لوگ ہیں, جو یوتھ ہے, وہ خصوصی توجہ ہوگی ہماری, خصوصی توجہ ہوگی نوکریوں میں, ہر چیز میں. پاکستان کا اس حلقے کا جو نوجوان ہے اس کو کوئی چیز ملنے میں کمی نہ رہے. اگر وہ تعلیم ہے یا وہ نوکریاں ہیں یا وہ روزگار ہے, سب سے پہلے ان کا فوکس, ہمارا فوکس. آپ کی اجازت ہے؟ بالکل آپ کی اجازت ہے. کو ہندو اجازت ہے. خان صاحب ایک چھوٹی جی ریکویسٹ ہے کہ ظہیر بھائی نے پہلے این حلقے بنیاد رکھی ہے. باقو سڈے خان صاحب تھاکو نا ظہیر بھائی نے بڑی خدمت کی ہے, اور ان بعد شاہد بھائی بالخصوص وہ تاری نا کمپین چلیں دے پین MP دی اتنے MNA دی تاری اپنی MP دی, پر ایسا آتے ہیں کہ سارے وہاں بھائیاں کو نا مضبوطی نال تھام گنو, تاکہ گال ہے کہ ایسا پہلے بھی بڑے محرومیاں دے شکار ہیں, ایسا ہون نہیں چیونا چاہتے. سارے نوجوان اتنے بے روزگار ہیں کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے. یقین میں سو بے روزگاری دی حد ہے, اور ترقیاتی کام بھی سارے بہت زیادہ ان علاقے ہیں جڑے محروم ہیں. انشاءاللہ ظہیر الدین خان اللہ ظہیر زندہ باد. لالا صاحب ساری دعا شاہد محمود خان ساری دعا جہانگیر ترین زندہ باد.
सारी ये दुआ आई कि तुम सारे हल्के जाओ। प्रेस कॉन्फ्रेंस वालों को सवाल करने दे, फिर हम आपस में बैठ करते मैं कहना चाह रहा हूँ कि इंशाल्लाह इस हल्के को हम एक मिसाली हल्का बनाएंगे और इस हल्के के एक एक वोटर की, एक एक अवाम की, जो वोटर नहीं भी है ना, छोटा बच्चा है, उसके लिए भी हम हाजिर हैं बहुत इंशाल्लाह। सर इलेक्शन के हवाले से अभी भी गैर यकीनी सूरत हाल है कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, आपको क्या लगता है वाकई 8 फरवरी को होंगे या आगे जाएंगे? मेरे ख्याल में 8 फरवरी को इलेक्शन होना इंतहाई ज़रूरी है। ये पाकिस्तान की ज़रूरत है कि एक इलेक्शन टाइम पे हो और एक हुकूमत आए जो 5 साल के लिए बैठ के मुल्क आवाम की खिदमत करे। इंशाअल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश है और जो हमें यकीन है और उम्मीद है कि हम उस हुकूमत का इंशाअल्लाह हिस्सा होंगे, ताकि हम ये बैठ के 5 साल के लिए इस पाकिस्तान के ज़बरदस्त मुल्क को हम ऐसा चमकाएं कि लोग याद करें। अगर नहीं होगा तो फिर लाए अमल क्या होगा, क्या करेंगे आप लोग? अगर इलेक्शन नहीं होती, देखें इलेक्शन अगर आगे जाती है किसी और वजह से जाएगी, मेरा नहीं ख्याल जाएगी। ये पाकिस्तान की ज़रूरत है इलेक्शन होना। अगर इलेक्शन आगे जाएगी, कोई बम फट जाएगा, कुछ और हो जाएगा, तो आप फिर बैठ के बात करेंगे, करना क्या है, मशावरत करके करेंगे। ये बताइए देखें, एक तो ईरान के इस एक्शन को कंडेम करते हैं और पाकिस्तान की जो रिस्पॉन्स आया है बड़ा ज़रूरी था और उसको हम इसकी इतलाही तहसीन पेश करते हैं। अल्लाह इसको संभाल के रखे, अल्लाह इस मसले को संभाल ले। हमारे बॉर्डर पहले कभी ईरान की बॉर्डर पे ऐसे मसले नहीं हुए, उम्मीद है कि ये संभल जाएगा और इंशाल्लाह उम्मीद ही कर सकते हैं ताकि ये चीज़ें अब ठंडी हो जाए। पाकिस्तान को या ईरान को एक टेंशन की ज़रूरत नहीं है और हमें हमारे अवाम को भी नहीं है। मुकाबला करने के लिए मुकाबला हम हर चीज़ हर वक्त कर सकते हैं, अगर दुआ करते हैं कि चीज़ें ठंडी हो जाएं और चीज़ें सेट देखिए, जब हम इकट्ठे इलेक्शन लड़े हैं एक अरेंजमेंट के तहत, तो हम इकट्ठे होंगे हर चीज़ में। इसमें अलग नून लीग और कोई और अलग करने की बात नहीं है। हम इंशाल्लाह इकट्ठे होकर काम करेंगे और इस जिन लोगों ने हमें वोट दिया है उनके खातिर काम करेंगे इंशाल्लाह। सर तकाम पाकिस्तान पार्टी को क्या किस हद तक यकीन दहानी कराइए, कितनी सीटें मिलेगी? अगर आपको 2 सीटें मिलती तो आप कौन से हल्के रखेंगे? देखें, ये बात करने की कितनी सीटें मिलेंगी, जितने हमारे कैंडिडेट खड़े होंगे तो मैं चाहता हूँ सारे जीतें इंशाल्लाह। सर ये बाकी अल्लाह ताला की मर्जी है। अगर ये आप एक दफ़ा ये सारी बातें इलेक्शन के बाद हों, आप कौन सा हल्का रखेंगे चीज के? ये बात जो हल्के की आवाम हुक्म देगी मुझे मैं वही कल करूँ। 149 मगर ये मैं बता दूँ, मैं यहाँ आया हूँ बड़े अरसे के बाद और ये मैं यहाँ सबको, अपने आवाम को, अपने लोगों को याद कहता हूँ कि मैं छोड़ूंगा नहीं कभी, मैं नहीं छोड़ूंगा 149 को पूरी तरीके ये खबरें भी चल रही हैं कि जो आजाद उम्मीदवार इस वक्त इलेक्शन लड़ रहे हैं, अगर वो जीत जाते हैं तो उनको जबरदस्ती आईपीसी में ज्वाइन करवाया जाएगा। इस तरह का कोई आईपीसी का प्लान है कि जो आजाद उम्मीदवार जीतेंगे उस बात नहीं? यार मैं एक बात बताऊं, जबरदस्ती ज्वाइन नहीं कराया जाता, लोगों को भी वजह से ज्वाइन होते हैं, वो बात की बात। लेकिन मेरी बात सुने, पिछली हुकूमत बनवाई थी आजाद उम्मीदवारों को मिला के, आपको याद है? ये भूल गए हो? याद है, दिन रात काम किया था, तो उसमें अच्छी बात थी। अब अगर जो आजाद सर ये बताइएगा, बानी पीटीआई जो है वो माशाल्लाह आपके पुराने दोस्त भी है और कभी इस हालत में उनको देख के आपके जहन में ये आया है कि उनके साथ सही नहीं हो रहा, या आपने भी सोचा है कि साड़ी नीति मनी का सही थी ना? देखो, इमरान खान के साथ मेरा बड़ा साथ रहा है, मगर अफसोस यह है कि इमरान खान ने के साथ जो हालात ख़राब हुए वो मेरी वजह से नहीं हुए। अब क्यों इस पूरी महफिल में मैं नहीं कहना चाहता कि किसकी वजह से हुए, मगर मेरी वजह नहीं थी, मैं इसमें बिल्कुल बेकसूर था। जब हालात ख़राब हुए तो मैं चुप करके साइड पे जाके बैठ गया।
मगर जब मेरे ऊपर एक जाती वार किया गया मेरी फैमिली का, फिर मैं चुप नहीं बैठ सका, फिर मैं आया और मैंने जो करना चाहिए था किया। ये बताएं कि जिन लोगों को सूबाई हल्का 215 में और सूबाई हल्का 216 में टिकटें नहीं मिली हैं, मुस्लिम लीग नून के वो नाराज बैठे हैं, अभी तक नहीं है। दूसरा ये है कि मुस्लिम लीग नून की जो तंजीमें है मुल्तान में, वो भी अभी तक आपके इंतजार में बैठे हैं, लेकिन आपके उम्मीदवार कोई उनके पास गया नहीं है। क्या आपने उनको नहीं लेना, गलत या गलत फैसला कर दिया या उनको बनाने की आप जवाब मुमताज भाई, पिछले दिनों बिलाल भट्ट साहब और अतर मुमताज साहब हम एक जगह इकट्ठे थे। उन्होंने बकायदा ऐलान किया कि हम ये जो हमारा पूरा जहांगीर तरीन साहब, शाद खान साहब और मेरे समेत, उन्होंने ऐलान किया कि हम इनके साथ हैं। मेरा ख्याल आपने वो सोशल मीडिया पे देखा नहीं, शायद आप ही बताएं। वो सारे लोग साथ हैं और हर टाइम नजर नहीं आ रहे थे सर इस वक्त इस टाइम हीर भाई आप इस टाइम साहब ने अपने जो उनके लोग थे सारे साथी थे, तो ये साहब पीटीआई में तो नहीं थे ना, मुस्लिम लीग नून में तो नहीं थे, इसलिए इन्होंने अपने आज जो हो रहा है, आज जो लोग खड़े हैं हमारे साथ, वो जो जिन्होंने ज्वाइन किया, जो हमारे इस पैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, वो लोग खड़े हैं हमारे साथ। आप देखेंगे उन लोगों को हमारी और महफिलों में, और आप चाहते हैं तो जिस तरह आप बात कर रहे हैं तमाम लोगों को इकट्ठा करने का तो बहुत बड़ा जलसा होगा। खाकवानी साहब आपका जवाब दे। ये बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, ये मजाक कर रहे हैं। क्या मतलब किस तरह जाएंगे, कह दिया देखें 300 यूनिट तक के जो लोग हैं हकदार हैं कि अगर कोई बरात मिले तो उनको मिले, जरूर देंगे। अच्छा सर, गेट टू के जरिए कितना है, ज़राअत पर आप बड़े एक्सपर्ट हैं, तो ज़राअत भी इसके लिए क्या करेंगे अगर आपको मौका? देखें ज़राअत जो है वो पाकिस्तान की एक बुनियाद है। ज़राअत जो है वो पाकिस्तान को उसने बनाया है, तो ज़राअत जो है पाकिस्तान को और बहुत बेहतर भी कर सकती है। तो ये जो ज़राअत में जो अजनास ग्रो करते हैं, जो चीज़ें हैं, उनकी मुनासिब कीमत मिलेगी हकदार को। सबसे अहम चीज़ ये है कि कीमत उनको मिले जो उनका हक है। उनसे ये ना हो कि दुनिया में कीमत कुछ और है और यहाँ उनसे सस्ती लेके दुनिया में भेज रहे हैं। हक को हक मिलना चाहिए और यही तरीकाकार है। प्लस असल बात में निकलती है पैदावार की। हमने इस तरह की हर चीज़ें करनी है, जैसे मैंने खुद भी किया हुआ है, पहले भी किया है, अब तो हम जोर से करेंगे कि जो पैदावार है फी एकड़ पर पैदावार उसको बढ़ाया जाए। पाकिस्तान में आम काश्तकार को अगर मदद की जाए, उनको ये चीज़ें मिलें, उनको समझ दी जाए तो पैदावार में बहुत इजाफा हो सकता है। उसी एक एकड़ से जहाँ पे अगर 30 बार निकलता है वहाँ से 50 निकल आएगा, तो वहीं से उसको बैठे बैठे फायदा हो जाता है। तो ये चीज़ें हमने करनी है, पैदावार बढ़े, और ये मुल्क के लिए भी बेहतर है। उनके लिए तो है ही है, मुल्क के लिए बेहतर है। पाकिस्तान से तो चीज़ें ज़रूरी अजनास एक्सपोर्ट होने चाहिए और होंगे। खान साहब, मेरा एक सवाल है, आप एक पार्टी के हेड हैं और आप इलेक्शन ये जीत जाते हैं, और जीतने के बाद अगर अल्लाह करे आप वज़ीर-ए-आज़म बन जाते हैं, तो आप पाकिस्तान को अमरीकी गुलामी से कैसे आज़ादी दिलवाएंगे? पाकिस्तान को मैं आपको बताता हूँ, मैं अमरीकी गुलामी हूँ किसी और की गुलामी हूँ। एक मुल्क की जो खुद मुख्तारी है वो उसकी मईशत पे डिपेंड करती है। मईशत, जब मईशत तकड़ी होगी कोई आपके हाथ सामने खड़ा नहीं हो सकता। मईशत उसके अंदर से ऐसी प्रोड्यूस निकले, ऐसी हालात में जाए कि आपको किसी से इमदाद लेने की जरूरत ना पड़े। एक दिन ये भी आ सकता है कि हम अगर पाकिस्तान में सब मिल के, आपस में मिल के, ये सबसे जरूरी बात है, यूनाइटेड होकर मिल के ऐसा काम करें कि हमारा मुल्क एक ऐसी जगह पे पहुंचे ताकि लोग हमसे जरूरत हो वो हमारे पास आए। ये सब कुछ हो सकता है अगर आप हिम्मत करके काम करें, और तमाम पाकिस्तानियों को अगर उनके पास हिम्मत है हमारे साथ शामिल हो, इंशाअल्लाह ताला एक ऐसा मुल्क बनाएंगे जो मिसाली हो। सर, आप हर जलसे में कहते हैं कि हमने सबने मिलकर चलना है, तो इस हल्के में 149 में एक बागी और भी हैं जो आपके मुकाबले में हैं, क्या उनसे आप मिलना चाहेंगे या उनको साथ लेकर चलना चाहेंगे? सर वो बागी तो नहीं है, वो तो दागी है। उसने 2 करोड़ तो मेरी टिकट आ गया, 2 करोड़ पे मैं मेरी टिकट एक मिनट हाँ जी, जैसे आप दागी है। ठीक। देखिए हमारा काम है सब लोगों को इकट्ठे लेके चलना,
जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी हम आगे कदम उठाएंगे और इंशाल्लाह लोगों को इकट्ठा करेंगे। किस लिए? इस हल्के की खातिर, बहुत इस हल्के की खातिर सब करेंगे जो जरूरत पड़े। और जी थैंक यू वेरी मच।